কিভাবে অস্থির পরিস্থিতিতে আমরা দিব্য জীবন লাভ করতে পারি। শ্রী অরবিন্দের আবির্ভাব দিবসে অনুষ্ঠান। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন, ভারতবর্ষে তখন চূড়ান্ত অন্ধকার, ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশরা শাসন করছে। ভারতের মানুষ তখন অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং অন্ধবিশ্বাসে নিমজ্জিত। মানুষের দুঃখের তখন শেষ ছিল না। তখন সমাজে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় চিতায় তুলে দেওয়া হতো। স্বামীর সঙ্গে হতো স্ত্রীর সহমরণ, যা এক নৃশংস এবং পৈশাচিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত ছিল সতীদাহ প্রথা। ভারতবর্ষ তখন এত অন্ধকারে যে মেয়েদের সূর্যের মুখ দেখা বারণ ছিল, মেয়েদের শিক্ষার অধিকার ছিল না। তখন পরাধীন ভারত এত অন্ধকারে যে ৮০ বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে ৭ বছরের বালিকার বিয়ে দেওয়া হতো, যা বাল্যবিবাহ নামে পরিচিত ছিল। পরাধীন ভারত তখন এত অশিক্ষায় নিমজ্জিত ছিল যে স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবাদের আর বিয়ে করার কোনো অধিকার ছিল না। রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো মহামানবদের আবির্ভাবে এবং তাদের ধারাবাহিক প্রয়াসের জেরে সেই সব ভয়াবহ কুপ্রথা বিদায় নেয়। এরপর একে একে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বহু মনীষী অন্ধকার ভারতে আলো দেখাতে শুরু করেন। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করা আর দেশের মানুষ, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার আঙিনায় এনে তাঁরা সব অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন। সেই সব মনীষীদের মধ্যে একজন ছিলেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। অত্যন্ত মেধাবী এবং উচ্চশিক্ষিত শ্রী অরবিন্দ দেশের মুক্তি সংগ্রামে কাজে নেমে আলিপুর বোমায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়েন। এরপর তাঁর কারাবাস হলে কারাবন্দী অবস্থায় তিনি আধ্যাত্মিক যোগ সাধনায় নিমজ্জিত হন। পরে জেল থেকে মুক্তি পেলে তিনি রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে পণ্ডিচেরিতে চলে যান। এরপর বাকি জীবন পণ্ডিচেরিতে তিনি কাটিয়ে দেন আধ্যাত্মিক যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে। মানুষের কেন এত দুঃখ, কিভাবে যোগ সাধনার মাধ্যমে মানুষ এক আলোর দিশা পেতে পারেন, কিভাবে মানুষ এক দিব্য জীবন লাভ করতে পারেন, কিভাবে মানুষ সুন্দর থেকে অতি সুন্দর হতে পারেন, তার সব পথ দেখিয়ে গিয়েছেন শ্রী অরবিন্দ। সেই দেশপ্রেমিক আধ্যাত্মিক যোগ সাধক এবং দার্শনিক শ্রী অরবিন্দের আবির্ভাব দিবস ছিল 15ই আগস্ট। এ উপলক্ষে শিলিগুড়ি মিলনপল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে সকাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন সকালে সেখানে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রী মায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন শ্রী অরবিন্দ অনুরাগীরা। এরপর শ্রী অরবিন্দের যোগ ধ্যানের অনুশীলনে তারা অংশ নেন। প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে তারা শ্রী অরবিন্দের বিভিন্ন দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। আজকের অন্ধকার সময়ে অস্থির পরিস্থিতিতে শ্রী অরবিন্দের যোগ দর্শন কিভাবে আমাদের দিব্য জীবন প্রদান করতে পারে সে বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য মেলে ধরেন বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় কলেচা। শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রী মায়ের দর্শনের ওপর অগাধ পড়াশুনো এবং জ্ঞান রয়েছে সঞ্জয় বাবুর। তিনি অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব হলেও সিম্পল লিভিং, হাই থিঙ্কিং নিয়ে চলছেন প্রচারের আলোর বাইরে থেকে। এদিন সেখানে ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের মহিলা শক্তি বিভাগ, অদিতি শক্তিপুঞ্জের তরফে ববিতা গোয়েল, শীতল কন্দই সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলেই শ্রী অরবিন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করেন। বিকেলে ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয় সেখানে। पहले दादा आप आए हमारे इस सेंटर में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सचमुच हमारे सेंटर पर लोगों के साथ बड़ा स्नेह रखते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री अरविंद का जन्मदिन है और हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। इसके लिए भी आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, मेरा नमस्कार। श्री अरविंद के जन्मदिवस के विषय में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है क्योंकि इतने सालों में श्री अरविंद के साहित्य को संसार ने जान लिया है और चारों तरफ बहुत गहराई से अध्ययन चल रहा है कि श्री अरविंद ने मानवता के लिए क्या कहा, मानवता के भविष्य के लिए क्या कहा। श्री अरविंद ने स्वयं अपने बारे में जब किसी ने पूछा बायोग्राफी लिखने के लिए तो कहा था कि मेरा जीवन बाहर से देखने लायक नहीं है, उसके विषय में कोई जानकारी बाहर की तरफ से देख करके मुझे जाना नहीं जा सकता और मेरे भीतर के बारे में केवल मैं जानता हूँ। इसलिए उन्होंने स्वयं अपने विषय में बहुत कुछ लिखा है, माता जी ने लिखा है,
आप सबसे ये अनुरोध रहेगा कि श्री अरविंद और माता जी के साहित्य को सब लोग पढ़ें ताकि वो अधिक से अधिक श्री अरविंद को जान सकें। मेरा अपना अनुभव यही है कि आज के चारों तरफ के इस भयानक माहौल में जहाँ जैसे कोई चर्निंग चल रही है, बहुत दुविधाएं हैं, सब तरफ एक कोलाहल चल रहा है, सब तरफ एक दिशाहीनता चल रही है, ऐसे माहौल में अगर हमको थोड़े से सूधी लोग जो है जो समझना चाहते हैं कि इस सारे माहौल में आखिर मानवता किस दिशा की ओर जा सकती है या जा रही है, तो ऐसे समय में श्री अरविंद हमारे लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक के रूप में हमारे जीवन में उपस्थित हो सकते हैं। उनका कार्य लगातार चल रहा है, हमारे अंतर में चल रहा है, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन अपने आप चल रहा है। लेकिन अगर हम मुखर रूप से उनके साहित्य के माध्यम से उनको जानने का प्रयास करेंगे तो वो स्वयं अपने विश्व रूप को हमारे समक्ष, जैसे अर्जुन के समक्ष कृष्ण ने रखा था, वैसे वो उपस्थित कर सकते और हमारे लिए, जैसे गीता को सुन करके अर्जुन ने अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लिया था, वैसे ही हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं केवल इतनी बात कहना चाहूँगा, स्वयं श्री अरविंद ने जो कही है वही बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आज के दिन आश्रम से एक मैसेज आया है, उस मैसेज में श्री अरविंद के सावित्री नामक एक विशाल उपाख्यान से, जिन्होंने, वो सबसे लॉन्गेस्ट कविता है संसार की, श्री अरविंद ने अपनी सारी साधना को शब्दों में पिरोया है, बहुत सुंदर शब्दों में। तो उसमें कहते हैं, माई सोल एंड हिज indissolubly linked in the one task for which our lives were born, to raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine। मेरी आत्मा और उसकी बिल्कुल जुड़ी हुई है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा जुड़ाव जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और वो जुड़ी हुई है एक कर्म में, जिसके लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है, कि इस संसार को, टू रेज द वर्ल्ड, इस संसार को हम उठाएं टू गॉड इन डेथलेस लाइट, उस अमर्त्य प्रकाश की ओर, उस दिव्य की ओर उठाएं, टू ब्रिंग गॉड डाउन, और उस दिव्य को इस धरती पे लाएं, टू द वर्ल्ड ऑन अर्थ वी केम, जिस धरती पर लाने के लिए, उस स्वर्ग को, उस देव को, उस दिव्य को इस धरती पर लाने के लिए हम आए हैं, टू चेंज द अर्थली लाइफ लाइफ डिवाइन, इस धरती के जीवन को दिव्य जीवन में बदलना। तो यही परिचय है श्री अरविंद का, और इस परिचय को समझने के लिए हम यहाँ पर इस केंद्र में चर्चाएँ करते रहते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते रहते हैं। उन्होंने इतना कुछ लिखा है जिसको अगर कोई समझे, अगर उसको लिखना चाहे दोबारा तो 100 साल लग सकते, इतना कुछ नहीं। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, आज के दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के इस दिन हम यह निर्णय लें कि क्या हम स्वतंत्र हैं, देश तो स्वतंत्र हो गया, राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल चुकी है, लेकिन क्या हम अंदरूनी तौर पर स्वतंत्र हैं? हम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए क्या करें? इसके लिए श्री अरविंद को हमें देखना होगा, उनकी ओर हमको देखना होगा, और इसी में हमारा कल्याण हो सकता है। श्री अरविंद ने तो नारी को माता के स्थान पर देखा है। सबसे पहले फ्रांस से जब माँ आई थी, उन्होंने 1920 में श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की, और फाइनली जब वो आ गई आश्रम में तो सबसे पहले श्री अरविंद ने उन्हें माँ कहा, और सबको परिचय कराया कि ये अदिति माँ है। और नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जो सृजन शक्ति है। जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा, अपने जीवन में देखिए आप, कि जहाँ पर माता का सम्मान नहीं है, जहाँ पत्नी का सम्मान नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में भी अगर माता का आशीर्वाद नहीं है और पत्नी का सपोर्ट नहीं है, वो व्यक्ति सफल हुआ ही नहीं है आज तक। और जिस देश के कल्चर में माता को इतनी पूजनीय माना गया है, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो हम यही कह सकते हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति पर ग्रहण लग गया है, और हमारे चिंतनशील समाज को ये आवश्यक है कि वो इस ओर ध्यान दे
आज हम पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर के रोज के आनंदों में खो रहे हैं, क्षणभंगुर आनंदों में खो रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर को, अपने चिंतन को हमने भुला दिया है, जिस पर हमारी युवा पीढ़ी वो आगे आकर के चिंतन मनन करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी वास्तव में जागृत है और वो इस तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमारा नेतृत्व, जो राजनीतिक नेतृत्व है, वहाँ कहीं ना कहीं कमी है, क्षुद्र स्वार्थ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में असली समस्याओं की बजाय क्रिएटेड समस्याएं ज़्यादा हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने व्यक्तिगत तौर पर हम स्वयं इस प्रकार से चिंतन करें और सामाजिक तौर पर हमारी ओर से जागरूकता रहे कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे समाज, हमारे आसपास के माहौल का चिंतन मनन किस ओर जा रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि इसी प्रकार से हमको स्वयं को कार्य करना पड़ेगा। हम कभी भी दूसरों की कमियाँ निकाल करके या कड़े केवल व्हाट्सएप मैसेजेस को इधर उधर करके हम कुछ नहीं कर सकते। हमको स्वयं समझना होगा, स्वयं चिंतन करना होगा। मेरा ये। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम बबीता गोयल है। मैं आदित्य शक्ति कुंज की एक मेंबर हूँ। मेरा नाम शीतल गोयल हाँ? है। शीतल कंदोई है। हाँ। हम लोग डिवाइन सेंटर से जुड़े हुए श्री माँ श्री अरविंद की चेतना से जुड़ के रहते हैं और उनकी शिक्षा को लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे मेंटर संजय बोलछा जी है, जो हम लोग को बता रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से जीवन जीना चाहिए और जीवन जीने का क्या उद्देश्य है, और बहुत ही सुंदर से जीवन के बारे में अवगत करवा रहे हैं। आज जैसे 15 अगस्त है, ये तो सबको मालूम है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और आज ही के दिन हमारे गुरु श्री अरविंद का जन्मदिन भी है और ये हमारे लिए सही रूप में स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि श्री अरविंद हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने आप से स्वतंत्र होना है। हमें श्री अरविंद की थ्योरी से हमें पता चलता है कि बाहर वाले कोई हमें बांध के नहीं रखे, हमारी खुशियों को, हमारे आनंद को किसी ने बांध के नहीं रखा, हम खुद है उसकी वजह जो हम लोग बांध के रखे। तो आज हमारे लिए विशेष महत्व है स्वतंत्रता दिवस का, देश स्वतंत्र होने का और खुद से भी स्वतंत्र होने का। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो भी जीवन है उसका कोई एम नहीं है, वो एमलेस लाइफ है। सब अपने अपने स्वार्थों में रहते हैं और यहाँ आके हमें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिला है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने अंदर देखो उस परम सत्ता के प्रति हमें जागरूक होना है, तो उसको बढ़ाना, आगे बढ़ाना है और अपने मन प्राण शरीर को पीछे रखना। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम।